Hello dear students, today I am going to continue chapter 5 of Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce, session number 2nd of staffing. In the first session we completed that introductory part of the staffing, also some of the basic information which is directly related with staffing concept. 4 different concepts were discussed, and last one we discussed that 7 different characteristics under the head of staffing characteristics. Now let's move to the other point of staffing, that is importance of staffing. As you know that one, personal, human resource, right, man yani ki labor, employees, all these points are directly connected with the staffing is not only merely to recruit the person, वो हमने देखा, it is the particularly activity which includes recruitment, selection, training, promotion and also post retirement type of the activities. Okay, also we have to maintain them for a longer time period. ये सब हमने देख लिया. तो what is the importance of staffing? So see, staffing occupies an important place in the process of management. When the management starts, you know that one, it is started with the different type of the activities, different functions are included in that one. So as the particular functions of the staffing, before starting this function we already completed that planning and organizing. तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, गुड स्ट्रक्चर है, तो उसको चलाने के लिए एक प्रॉपर बेस चाहिए, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो स्टाफिंग है. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है. तो एज मोर इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड. So we started with the particular type of the work in the introductory part. The more and more production is there, okay, तो more profit is the requirement. अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ने ही वाला है, ओके, बट कॉस्ट मस्ट बी इंक्रीज, तो कॉस्ट कम होनी चाहिए. तो इन सब में से बाहर निकलने के लिए कई रास्ते हमने देखे. 11 में भी हम देख चुके थे कि द मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑफ प्रॉफिट. तो यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही है तो प्रॉफिट कौन करवाता है? नॉट ओनली द मैनेजमेंट, नॉट ओनली द पर्टिकुलर स्टाफ, दोनों मिलकर ही काम करते. तो हाउ एंड वाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द वर्किंग और एक्सेप्टिंग द पर्टिकुलर वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज, लेकिन उनका किसी न किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है. सो सिंपल यहाँ पर मैं वही बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रीज का काम बढ़ा तो स्टाफिंग का भी इंपॉर्टेंस बढ़ा. सो एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट स्टाफ इज लाइक अ मियर स्केलेटन. This is the sentence which was asked so many times in the examination, not only in the school level but also in the board examination. Same, no any change. Any organization without staff is like mere skeleton. स्टाफ के बगैर का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्केलेटॉन की तरह है, वो कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ वो आपको कोई आउटपुट दिखाने के लिए चलेगा कि भी इसको हाथ बोलते हैं, इसको स्टमक बोलते हैं, इसको आइस बोलते हैं, व्हाटएवर, राइट. आपको मालूम है कि स्केलेटन का काम क्या है. लेकिन अगर ये सेंटेंस आए तो लिखना क्या है? तो लिखना है आपको इसका इम्पोर्टेंस. कीप इन माइंड. नाउ हाँ, से पर्टिकुलर एमसीक्यूज के लिए भी इसको याद रखना, इट इज़ मियरली स्केलेटन. उसको किसके साथ हमने कंपेयर किया है उसमें पूछा जा सकता है. Now the inanimate machines can increase production, but employees can give even better results. तो शुरुआत भी यहाँ से हुई, से फिर से ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि when you are doing work, when the employees are working, right, maybe their output is quite less than the inanimate machines. जो machines है उससे ये जो आउटपुट है वो थोड़ा 101% कम ही होगा, उसमें कोई बेशक नहीं है, राइट. हम बोल सकते हैं कि वो 101% ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से जो भी आउटपुट आएगा वो मशीन से कम होगा, लेकिन द बेटर एंड गुड रिजल्ट्स आर ओनली फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्सेज. सो इन कंपैरिजन टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स मच ऑन इट्स स्टाफ. So as we know, we already discussed in organizing is also in organizing the success of the particular business or enterprise is really depend on organizing. वहाँ पर भी था, if you want to become successful there must be a good type of the organizing is required. Like that here also every function is good and every function is best. तो staffing भी वैसा ही है कि if the future of the business enterprise is good, राइट, तो उसके लिए उसके पीछे स्टाफिंग का ही हाथ होगा. अच्छा, आपको सक्सेसफुल बनना है, दैट फ्यूचर आपको ब्राइट करना है, तो 101% आपका एंटरप्राइज का जो भी स्टाफिंग है वो हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए. सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन इट्स स्टाफ. अगर आपका स्टाफ अच्छा है, आप उसको मेंटेन करना चाहते हो, आप उसको लंबे समय तक के लिए सस्टेन करना चाहते हो अपने बिजनेस में, तो 101% यू हैव टू गिव सैलरीज टू देम. अच्छा, सैलरी आप दे रहे हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है? दे विल गिव देयर वर्क 101%. सो स्टाफिंग इज द ओनली लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हमने देख लिया. लेकिन याद रखो एमसीक्यूज के लिए वो एक ही लिविंग हमारे लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. नाउ
पर्सोनल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज से सिर्फ उसको हम फिजिकल रिसोर्सेज से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? द रीजन इज हियर, पर्सोनल ओनली कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द फिजिकल रिसोर्सेज। द रीजन इज दैट दे हैव फीलिंग्स, उनके पास फीलिंग्स है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये भी रिपीटेटिव थिंग है, या कुछ नया इंटेलिजेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, और उनके पास डिफरेंट स्किल्स है। सो हियर डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जो है, 2 लाइन की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ ना सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज के हिसाब से ही नहीं चलता। जब भी अभी ह्यूमन रिसोर्स का नाम आता है हम समझते हैं वो काम ही कर लेते हैं। हाँ, they have that potentiality, they can able to do the work, but somehow they have some feelings, they have some self respect, right, they have intelligence and also some of the understanding with the skills, ये उनके पास है, तो ये भी सेंटेंस जरूरी है। नेक्स्ट वन, एज एन एक्सपर्ट, फ्रॉम द एक्सपर्ट, और ही सेड राइटली, माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। आप अपने लोगों को संभाल लो, आपके लोग आपके पूरे बिजनेस को संभालेंगे। दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस सेंटेंस। ये भी पूछा जाता है, राइट, ये किसने कहा है, ये डिटेल आपके पास ऑलरेडी है, राइट, हमारे पास मॉडर्न थॉट में ये आ गया तो हम उसको रिपीट नहीं करते, लेकिन एज पर एक्सपर्ट ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। आप अपने आदमियों को संभाल लो, वो अपना बिजनेस संभालेंगे। सिंपल है ना, एवरीथिंग फॉर यू, यहाँ मैंने बिजनेस वर्ड्स बोला लेकिन एवरीथिंग फॉर यू। यहाँ मैन मीन्स, ये सेंटेंस बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, जो भी काम करता है, अगर आप शॉप भी चलाते हो उसके लिए भी ये सेंटेंस जरूरी है, राइट। अगर आप छोटी सी टपरी चला रहे हो तो आपके यहाँ काम करने वाले लोग वो भी आपके एम्प्लॉई है, राइट, तो सबके लिए सेंटेंस नेसेसरी है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, ये वाला है, स्केलेटन वाला है, अगर हम बोले कि फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज टोटल ऑन इट्स स्टाफ, तो ये तीनों में से कोई भी सेंटेंस आए एक्सप्लेन द स्टेटमेंट में, वी कैन राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर स्टाफिंग। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है कि स्टाफिंग क्या है, राइट, उनके बिना कुछ नहीं होता। करोड़ों रुपये की आप मशीनरी लाओ, चलो छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ मशीनरी को छोड़ दो, मशीनरी है ही नहीं, लेकिन अच्छे ह्यूमन रिसोर्स भी शायद आपके पास नहीं है, तो यू कैंट एबल टू गिव द बेस्ट फ्रॉम योर साइड, है। और उसके बाद सब मशीनरी लाते हो, दैट इज़ गुड। पहले सब कुछ हाथ से ही होता था ना, फिर भी अच्छा होता था, लंबे समय तक के लिए चलता था। अब सब मशीन से होता है, छोटे समय के लिए, कम समय के लिए चलता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो एक ही चीज़ चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मस्ट बी एट द गुड लेवल। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वन, यानी स्टाफिंग। फर्स्ट वन, ड्राइविंग अ फोर्स। This particular importance are always there in the different way in the examination. ये सेंटेंस के हिसाब से होता है, या ये 8 आपके सामने है लिस्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको भी लिख सकते हो। द फर्स्ट वन, ड्राइविंग फोर्स, तो कैसे, कंटेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो आपके लिए एक फोर्स है, कैसा फोर्स है कि यू कैन डू बेटर। कंटेंटेड और एफिशिएंट स्टाफ, दोज हु आर विथ गुड कंटेंट रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू द पर्टिकुलर थिंग, कोई भी काम के लिए उसके पास पूरा कंटेंट होना चाहिए, यानी वेल एस्टैब्लिश्ड। और दूसरा है एफिशिएंट स्टाफ, एफिशिएंसी आपके लिए नया वर्ड नहीं है, ओके, विद द बेस्ट कैपेसिटी। तो ये बोथ द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए ड्राइविंग फोर्स से आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा अच्छी तरीके से, चालक बल जिसको बोलते हैं। ओनली एन एफिशिएंट स्टाफ कैन अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस along with other factors of production. So if human resources are there, if human beings are there, यानी कि आपके यहाँ काम करने वाले जो भी लोग हैं वो दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ सकते हैं, वही लोग जोड़ सकते हैं ना, राइट। बाकी कैपिटल कितना भी हो, मैं मशीन अपने आप उसको यूज़ नहीं कर सकता, यू हैव टू स्टार्ट द मशीन। मशीन स्टार्ट करने के लिए बंदा चाहिए। और दूसरी लैंग्वेज में बात करो, आपके पास जितना भी कैपिटल हो, राइट, कैपिटल आप जितना भी यूज़ कर लो, लेकिन उसको परचेज करके मशीनरी लाते हो, कोई भी चीज़ लाते हो, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ओके, सो यहाँ पर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर नेसेसरी, वो तो उसके लिए तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, राइट, विद द हेल्प ऑफ द अदर फैक्टर्स। एंड वो जो फैक्टर्स अदर्स यूज करना चाहते हैं वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि इसके बिना, ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना, स्टाफिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जितना भी अच्छा मशीनरी हो, लेकिन स्टाफिंग के बिना वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, डायनेमिक एक्टिविटी। ये वर्ड रिपीटेटिव चीज़ आ रही है, राइट, आगे भी हमने देखा है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि स्टाफिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ओके, तो ये भी यहाँ थोड़ा नाम बदला है, डायनेमिक प्रोसेस की जगह डायनेमिक एक्टिविटी है। तो ये सिंपल सी एक सिंपल लाइन है कि स्टाफिंग इन्फ्यूजेस डायनेमिज्म इनटू बिजनेस। वो वहाँ किसी ना किसी तरह वो जो भी पॉजिटिविटी है रिलेटेड टू द वर्क
रिलेटेड टू द बिजनेस, उसको आगे चलेता है, उसको पुशिंग करता है। यानी स्टाफिंग इन्फ्यूजेस डायनेमिज्म इनटू द बिजनेस, वो डायनेमिज्म लाएगा ही, डायनेमिक एक्टिविटी होनी ही चाहिए। एंड देन आफ्टर परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, तो ये डायनेमिज्म आएगा तो बाय डिफॉल्ट योर एक्टिविटी विल कंप्लीटली स्टार्टेड एंड इट विल बी कंप्लीटेड एंड वंस अगेन इट विल स्टार्ट। ओके, तो वो तो डायनेमिक रहेगा ही ना। अगर काम चल ही रहा है तो फिर वो घूमता ही रहेगा, लेकिन स्टाफिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो डायनेमिक एक्टिविटी, ये याद रखना। थर्ड वन, इम्पोर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये भी आ गया कंसर्न विद दी रिलेटेड विद दी अदर मैनेजर फंक्शंस, पांचवा जो हमने देखा था ऊपर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही है। तो वंस अगेन सेम कि अदर मैनेजरल फंक्शंस लाइक कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एक्सेट्रा कैन नॉट सक्सीड विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग। तो ये भी रिपीटेटिव चीज़ है, वो भी हमने देख लिया है ऊपर। तो सिंपल है कि सब अलग अलग जो फंक्शंस है उसको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, उसके सिवाय स्टाफिंग पॉसिबल नहीं है। आप समझ लो कि मेरे साथ पूरे 100 एम्प्लॉइज और मैं सब कुछ काम उनसे करवा लूँगा, तो सम ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय द टॉप लेवल, सो प्लानिंग इज डन बाय द अपर लेवल। तो प्लानिंग के लिए अलग स्टाफ चाहिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम अकेले ही कर सकते। ओके, देयर इज अ नीड ऑफ द अदर फंक्शंस ऑल्सो। सो इम्पोर्टेंट फॉर द अदर फंक्शंस, सबके लिए सब अलग अलग काम करते हैं। फोर्थ वन, लिम्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, ये चीज याद रखो, लिम्स। प्लानिंग ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ द ब्रेन इन द ह्यूमन रिसोर्स, अरे ह्यूमन बॉडी, ये हमने देखा था ऑर्गेनाइजिंग में। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो लाइक हियर स्टाफिंग क्या है, तो स्टाफिंग इज लाइक द लिम्स ऑफ एन एंटरप्राइज। तो वो ऑर्गेनाइजिंग वाला जो पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में जो लास्ट पैराग्राफ था उसको याद कर लेना फिर से एक बार। प्लानिंग में आपका ब्रेन है, और उसके बीच पहले हमने देखा था कि मैनेजमेंट जो बिजनेस है वो सोल है, वो भी देखा था ना, शायद आपका होगा तो मैं फिर से आपको बता दूं। यहाँ पर है, देखो, मैनेजमेंट इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस, प्लानिंग इज द सोल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स बॉडी। राइट, कई बार कई रिलेटेड मैंने अभी बोला कि प्लानिंग को भी हम ब्रेन बोलते हैं। राइट, एक ही बुक में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा बुक के हिसाब से। लेकिन आप ये सेंटेंस को अगर ऑर्गेनाइजिंग का फॉलो करते हो तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होता है वो उसका ब्रेन है, राइट, प्लानिंग उसका सोल है। फिर से रिपीट इसलिए करो तो मुझे उसको साथ स्टाफिंग ज्वाइन करना है, इसलिए प्लानिंग आपका सोल है और ऑर्गेनाइजिंग आपकी बॉडी है, फिजिकल स्ट्रक्चर। और एज पर दिस पर्टिकुलर चीज देखिए आप, प्लानिंग ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ द ब्रेन। ओके, जो मैनेजमेंट था उसका काम प्लानिंग ने ले लिया, तो प्लानिंग हो गया ब्रेन और सोल, दोनों बोल सकते हो, सोल ह्यूमन बॉडी में। और स्टाफिंग क्या करता है, स्टाफिंग उसका काम है लिम्स यानी अंगो मानी डिफरेंट टाइप ऑफ द चीज जो काम करती है। तो आपकी बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के उसके अलग अलग पार्ट्स है बॉडी के, वो उसके लिम्स है। तो एंटरप्राइज के जो भी अलग अलग फंक्शन है उसमें से स्टाफिंग का काम है लिम्स का। आगे सॉरी, थोड़ा बीच में से, हाँ, यहाँ पर इट ऑक्यूपाइज द प्लेस ऑफ द ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी एंड स्टाफिंग इज द लिम्स, ये देखा। सो विदाउट देम एक्टिविटीज कैन नॉट बी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके बगैर कोई भी कामगिरी नहीं हो सकती। सामान्य रीते कहेवा जઈએ तो हाथ वगर अमुक काम न ज थाय, आँखों वगर अमुक काम न ज थाय। यू नो दैट वन, कि सम ऑफ द वर्क इज टोटली डिपेंड ऑन योर लिम्स। ओके, जिसके पास नहीं है उसको पूछो कि कैसे वो लोग काम करते हैं, और आपने देखा भी है। सो लिम्स का भी इंपॉर्टेंस है ना, शरीर के हर अंगों का कुछ ना कुछ काम है, राइट। तो वैसे ही स्टाफिंग लिम्स है, तो उनका अगर कुछ काम नहीं होगा, सभी काम उनके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, नेक्स्ट वन देखते हैं हम, फिफ्थ वन, जॉब सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग स्टाफ। ये जो स्टाफिंग है उसकी एक इम्पोर्टेंट चीज यही है कि स्टाफ जो काम करता है उससे कई लोग मोटिवेट भी होते हैं। तो मोटिवेशन इन द सेंस ऑफ द वर्क, मोटिवेशन इन द सेंस ऑफ द अदर थिंग्स। तो बिकॉज ऑफ द स्टाफिंग, ड्यू टू स्टाफिंग, द कंप्लेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉइज कैन बी अंडरस्टूड एंड स्पीडी सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि हाउ द स्टाफ इज सेटिस्फाइड। आप उसको सैलरी देते हो, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा? नहीं होगा।
सैलरी तो पूरी दुनिया में मिलती है. इफ़ यू हैव सम पोटेंशियलिटी, इफ़ यू हैव सम एबिलिटी, स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, यू विल गेट द सैलरीज. हर टाइम ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपको उसके वहाँ एडजस्ट भी होना पड़ता है. लेकिन अगर आप एडजस्ट हो गए हो, ओके, तो ऐसा नहीं कि आपका आपका काम होगा आप सेटिस्फाइड हो. अकेली सैलरी से आपका काम नहीं होता है. कई बार कई प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका सॉल्यूशन आना चाहिए. कई एम्प्लॉयज़ के पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, कई एम्प्लॉयज़ के बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं. उन सबको याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना, पहले समझना चाहिए उनको, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन होता है स्पीडीली. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, दे विल नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क. वो काम के ऊपर शायद कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेंगे. अगर एवरी टाइम एक ही बंदे को प्रॉब्लम होता है तो फिर उसका कुछ अलग से हमें इंतजाम करना पड़ता है. नाउ प्रॉपर प्लानिंग and distribution of work creates feeling of job satisfaction among the employees. प्लानिंग जो भी है प्रॉपर होना चाहिए. अरे टोटल एक्सपर्ट्स जो है 2-3 जो भी एक्सपर्ट प्लानिंग करते हैं कैसे काम करवाना है, राइट, तो वो तो एक कमिटी है ना, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वाइड एक्सपीरियंस है, तो वो प्लानिंग प्रॉपर करने ही वाले. लेकिन उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजिंग, राइट, वो भी ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ स्पेशलाइज थिंग से हम उसको डिवाइड करते हैं. और तरीका भी प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए कि तरीका भी ऐसा हो कि शायद उसमें से कुछ क्रिएट ना हो. कई बार ऐसा होता है कि सम ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड थ्रू दैट पर्टिकुलर प्लानिंग. तो प्लानिंग आप करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होने ही वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो, राइट. सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मस्ट बी क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क. तो जब भी आप कोई काम सौंपते हो तो सामने वाले की परिस्थिति देखो. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क क्रिएट्स फीलिंग ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज. तो उनकी परिस्थिति अच्छी होगी, दे विल कंप्लीट द वर्क, ओके, देन एंड देन दे विल सेटिस्फाइड. अगर इसको मैं एक लाइन में समझाना चाहता हूँ तो आप उनकी कंप्लेंट सुनो, उनको सॉल्व करो, उनका काम जो है उनको देखो, राइट, और प्लानिंग के हिसाब वर्क डिस्ट्रीब्यूट करो. तो व्हाट विल हैपन, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली दे विल सेटिस्फाइड विद देयर वर्क. आपके काम से आप खुश है तो उनके काम से वो भी खुश होने चाहिए ना. दैट इज डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क ऑन द प्रॉपर बेसिस. कई बार ऐसा भी होता है प्रॉपर बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो मे बी दे विल नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम. तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, हारमोनी इन अ रिलेशंस. अब ये भी रिपीट चीज है. तीसरा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशंस, तो यहाँ हारमोनी क्रिएट करनी है. सी स्टाफिंग क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज. सब लोग साथ में मिलकर काम करने वाले. स्टाफिंग में आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ को हम फॉलो नहीं करते, उनको ट्रेनिंग देते, उनको मेंटेन करते, लंबे समय तक के लिए वो काम करे, ऐसा हम करते. तो इट क्रिएट्स एनवायरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन. वो सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा, जॉब के थ्रू आएगा, वर्क के थ्रू आएगा. उनकी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करो, उसके हिसाब से आएगा. हर बार डिमांड फुलफिल नहीं भी होती है, लेकिन अगर प्रॉपर डिमांड है तो पूरी कर देती है मैनेजमेंट, राइट, और जो स्टाफ है उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है. तो दैट इट विल इंक्रीज द, और द एनवायरमेंट ऑफ द सेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज विल इंक्रीज. सो वी कैन से इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश cordial relationship between employees and employers, right, sorry, employers and employees. So it will increase and create that particular relations. And then after the cordial आपको मालूम है जो साथ में रह के चलते हैं, राइट, वो एक रिलेशन उनके बीच में क्रिएट होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच. हाँ, so it will establish that relation between that one. But keep in mind the particular type of the things where they are doing the work. Somehow some of the relationships are only for the one type of the 8 hours, 1 week, 10 days, whatever. We are not following the days. પણ સમટાઈમ્સ એવું થાય છે કે આ જે રિલેશન બને છે એ કદાચ આપણે કહેતા ઉષ્માભર્યા સંબંધો ઘણીવાર ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ વિથ ઇચ અધર, કે ભાઈ ત્યાં કહ્યું છે એટલે કરી નાખીએ, રાઈટ. सी this type of the cordial relations are required, okay, good relations, that is cordial. So it will increase employment. मैं रिपीट એટલા માટે કરું કે employees are always working together. Next one, increases the prestige of the organization. આ એક નવો પોઈન્ટ છે એની અંદર, but it is very easy. કે contented and efficient staff, also this particular sentence is repeated, it was already there, right, in the second और थर्ड important. तो जो स्टाफ है हमारा, आई थिंक पहले में ही था, जो कंटेंटेड और एफिशिएंट स्टाफ है, इट इज़ एन इनवैल्यूएबल एसेट. ये एक सेंटेंस एक बार एग्जाम में आया था और ये अंडरलाइन करके रखना. कंटेंटेड एंड एफिशिएंट स्टाफ इज़ एन इनवैल्यूएबल एसेट. जो पूरा अपने वर्क में कंटेंटेड है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है और वो एफिशिएंट है, तो वो इनवैल्यूएबल एसेट है. दिस एसेट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एज यू नो दैट. उसको हम बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते. कोई एक बंदा है पूरे 25 साल से काम कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं होगी, है, आपको मालूम है, लेकिन वो इनवैल्यूएबल एसेट है.
सो इट इंक्रीजेज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वही इनवैल्यूएबल एसेट मार्केट में उसकी प्रेस्टीज बढ़ाएगा। अगर आपका स्टाफ सही जा रहा है और कुछ ना कुछ वो नया करने जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, है। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट खुद कई डिसीजंस ऐसे होते हैं अपने आप ले लेते हैं, लेकिन वो एक लेवल से ऊपर है। जो काम करना है वो पर्टिकुलर स्टाफ को करना है, तो यू हैव टू टेक सम ऑफ द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टाफ साइड। यानी कि कई बार कई चीज़ें आप उनको पूछो, उनका एक बंदा रखो जो रेगुलर काम करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर पर्सन मैनेजमेंट कोर कमेटी में होना ज़रूरी है, तो ही मालूम पड़ेगा कि कैसे काम हो रहा है। क्योंकि कई बार जो समझ लो कि एक पर्सन है जो मार्केट में कुछ सेल करने जाता है, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसको मालूम है मार्केट में कौन से आंसर आ रहे हैं, उसको मालूम है मार्केट में क्या हो रहा है, हाँ। तो उसकी थोड़ी एडवाइस लो। कई बार ऐसा होता है कि હું તો એક્સપિરિયન્સ વાળો છું, મને બધી જ ખબર છે, એક્ઝેક્ટલી યુ આર રાઇટ, બટ યુ વિઝિટેડ વેરી લેસ ટાઈમ ઇન ધ શોપ્સ, રાइट, against your work some of the other people visited on the daily basis, frequently they are working with that particular persons those who are in the market। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेल्स एग्जीक्यूटिव हर रोज किसी ना किसी को मिलता है, और आप सेल्स मैनेजर हो, यू आर इन द ऑफिस, टीम लीडर हो, आप मार्केट में नहीं जाते हो, आप सिर्फ डेटा फॉलो करते हो जो अपनी मौसी है उसके पास है, यानी गूगल के पास है। सो उसको हम डायरेक्टली नहीं फॉलो करते, फेस टू फेस हमें मिलना चाहिए, दैट इज द थिंग। लेकिन प्रेस्टीज बढ़ती है कंटेंट स्टाफ से। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, कंटिन्यूअस प्रोसेस। The very existence of business is not possible without its staff. Staff is there. That's why your existence is there. तो business existence is only because of staff. मैं कहूँगा हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन very existence is not possible without them. उनके बगैर existence शायद नहीं भी हो सकता है, उनके बगैर हो नहीं सकता और उनके साथ है ही ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन अगर इसको फॉलो करें कि existence of business is not possible without staff, उसके स्टाफ के बगैर उसका एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है। एज लॉन्ग एज बिजनेस एक्टिविटीज कंटिन्यू, स्टाफ एंड स्टाफिंग प्रोसेस विल ऑल्सो कंटिन्यू। तो ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई, हम पहले से प्लानिंग से ही सीखते आए कि कोई भी प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसको आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डाल सकते हो, और ऑलरेडी एक पॉइंट है सेकंड नंबर का, पेरेनियल प्रोसेस, उसको हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं ना। तो वो एक्सिस्टेंस जब तक बिजनेस का है तब तक स्टाफ रहेगा, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो जो स्टाफिंग है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, उसकी कई इन्फॉर्मेशन अभी भी है। स्टाफिंग यानी ह्यूमन रिसोर्स, लोगों का काम ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए दो अलग अलग टाइप ही है, वो भी हम देखना चाहेंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ ना कुछ चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की कमी के साथ हम उसको नहीं कर सकते, बिकॉज द लेस people are there, contented in our language, contented people are there, so how we can able to complete the work। so that's why efficient and contented staff is required, they are invaluable asset, उसको हमें ध्यान पर रखना पड़ेगा। so that is the thing। now let's move to other point, that staffing as a part of human resource management। हालांकि लास्ट ईयर के लिए इसको निकाल दिया गया था, 70% सिलेबस में ये नहीं था, 30% में ये निकल गया था, लेकिन इस साल हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो दैट्स वाई इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM का एक पार्ट है ये। अगर इसका हम शायद इंक्लूड करें हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो स्टाफिंग उसका एक पार्ट बन जाएगा। तो जो भी डिपार्टमेंट, अब तो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आपको एक HRD रखना है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रखना है अपने यूनिट में, ओके। 2013 के बाद जो भी चेंजेस आए, 2016 में कई क्लोजेस ऐड हुई, 14 में भी कई क्लोजेस के ऐड हुई थी, तो उसके हिसाब से ये डिपार्टमेंट आपको याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन। हियर इट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये फुल फॉर्म में भी याद रखना, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। HRM इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर रिक्रूटिंग नेसेसरी स्टाफ एंड डेवलपिंग इट फॉर द अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर आपका जो भी स्टाफ है वो वैसे ही नहीं आ गया है, उसके लिए किसी ना किसी यूनिट ने बहुत एक्सपेंस किया है, बहुत रिक्रूटमेंट प्रोसेस में से वो पास हुए, सिलेक्शन किया, ये सब पीछे आएगा, इसी चैप्टर में हम देखेंगे। तो फिर से एक बार HRM क्या है, HRM इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर द रिक्रूटिंग नेसेसरी स्टाफ। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपके जो भी स्टाफ की ज़रूरत है उसको पूरी करने के लिए एक प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है,
और उस प्रोसेस में क्या होता है, आफ्टर रिक्रूटिंग डेवलपिंग देम और डेवलपिंग इट, किसके लिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो हमारे बिजनेस एक्शन एंटरप्राइज के अचीवमेंट ऑफ द गोल्स के लिए ये सबको हम रिक्रूट करते हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होना जरूरी है। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है, अच्छे स्टाफ को लेने के लिए प्लान करना, प्रोसेस करना और उसका डेवलपमेंट करना। नाउ मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस नाउ अडेज consider that staffing department as a human resource department, right? So the full form of the HRD, that is human resource department. Okay, so keep in mind that thing, ये याद रखना, ये आपके 1 मार्क के लिए जरूरी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी जरूरी है। तो HRD हमेशा रहेगा हर कंपनीज के पर्टिकुलर यूनिट में। जनरली स्टाफिंग इंक्लूड्स, क्या आता है ये देख लिया हमने, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। उसके से हमने देखा उनको मेंटेन करो, है, उनको प्रमोट करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनका ट्रांसफर करो, व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार ये 3 चीज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स materialistic facilities, whatever the demands and needs of that particular staff for the working, for the fulfilling the particular objectives. तो materialistic facilities, मटेरियल के हिसाब से उनके पास तो सब होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, मशीन्स होना चाहिए, राइट। उनको काम करने के लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, वो सब होना चाहिए, खाने पीने के लिए ब्रेक होना चाहिए, ये मटेरियलिस्टिक में ऐड कर सकते हैं, राइट। फिर प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम, ये हमने आगे देख लिया है, राइट। टाइम बेस्ड सिस्टम में कुछ नहीं मिलता है, वर्कर आता है, काम करता है, 8 घंटे में हुआ ना हुआ निकल जाता है। लेकिन अगर ये प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम होगा तो वॉट एवर ही वर्क, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। 5 घंटे का काम वो 3 में ख़त्म करके चला जाए, डोंट वरी, राइट, वो प्रोग्रेसिव सिस्टम में आता है। एंड ऑल्सो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, तो ये जो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर है उनके अच्छे के लिए, उनके लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करो, राइट। कई बार ऐसा होता है कि ये वेलफेयर के लिए कई बार कंपनी से एक अलग से फंड भी क्रिएट करती है। तो ये चीज़ें याद रखें 1-1 मार्क के लिए, राइट, कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। वाइल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, देखो हमने यहाँ बोला कि जो स्टाफिंग क्या इंक्लूड करता है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। हाँ, ये डिफरेंस याद रखना, ये नहीं पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि कई बार अगर कुछ नया आ जाए तो इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो देखो, सेशंस में आप ध्यान दो, इसीलिए हम बोलते हैं। तो स्टाफिंग ये सब इंक्लूड करता है। जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या इंक्लूड करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो लोग हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, है? तो अगर आप ये चीज़ प्रोवाइड करोगे तभी होगा ना। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखो, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग होता है और उसमें सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, मटेरियल बेसिस, प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम, उनके काम के हिसाब से पैसे दो और उनका वेलफेयर करो। जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उनका डेवलपमेंट करता है, उनका ग्रोथ करता है। भाई तू जे काम करो जो आई इम्प्रूवमेंट लाई, then and then you will get the success. This is a common words, that's why I'm using that particular language, Gujarati. Okay, आप ये काम करो तो you will be get success. Okay, ये सब होता है। सो ये दोनों के बीच में शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस हम बोल सकते हैं। Formerly the meaning of staffing was confined to filling up vacancy only, but today it has become a part of human resource management. ये भी याद रखो, स्टाफिंग HRM का एक पार्ट है। पहले स्टाफिंग का मतलब होता था खाली जगह को भर दो, दैट मीन्स के सिंपली फिलिंग अप द वैकेंसीज, जो भी खाली जगह है उसको भर दो, भरी दीदी काम पूરું થઈ ગયું। बट હવે એવું નથી, राइट। नाउडेज और टुडे वी कैन से इट इज़ द नेसेसरी थिंग्स। स्टाफिंग को हम एक अलग फंक्शन के हिसाब से लेते हैं और वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन। सो इन दिस डेज of global competition, the importance of human resource has increased, and considering other factors of production to be noteworthy, good results can be achieved by the recognition of the staff, its loyalty, efficiency, satisfaction and care. So whenever the staffing is there, keep in mind human resource management pre-exists, उसका एग्जिस्टेंस है, इसीलिए स्टाफिंग हुआ है। और अभी के इस ग्लोबल मार्केट में आप देखो बहुत मार्केट कम्पिटिटिव हो गया है, ग्लोबल मार्केट बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है। सो ह्यूमन रिसोर्स का काम जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, पर्सनल जो है वो बढ़ रहा है। यू हैव टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़ बाय यूजिंग देयर स्किल्स। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अपने स्किल्स देते हैं, उनका इंपॉर्टेंस है मार्केट में, उनका इंपॉर्टेंस है यूनिट में, उसको हम यूज़ करते हैं। ओके, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नॉट ओनली द ह्यूमन रिसोर्स आर देयर,
अकेला लेबर नहीं जा रहा है, कई अलग चीज़ें भी होती है उसमें। तो कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देन लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में कई अलग अलग होते हैं। हम लेबर को निकालते हैं, उसके सिवा भी कई अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकल जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो 4 है उसको हम फॉलो करे जा रहे हैं, तो वो जो है वो नॉट वर्दी है। सो गुड रिजल्ट, आपको अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा? यू विल गेट द गुड रिजल्ट और यू कैन बी अचीव, ये अंडरलाइन करके रख रहा है। बाय द रिकॉग्नाइजिंग उनका स्टाफ, आपके स्टाफ को रिकॉग्नाइज करो, अब फाइनेंशियली करो, नॉन फाइनेंशियल करो, स्टेज पे बुला के करो, जो भी करो आपके हाथ में है, राइट। उसकी लॉयल्टी को देखो, कई लोग काम करते हैं उसने एक पैसा भी नहीं खाया होता है, राइट। कई लोग ऐसे होते हैं उसके पास कई करोड़ों रुपए का हिस्सा होता है, लेकिन उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसका तो उसके काम खत्म होने में इंटरेस्ट होता है। लॉयल्टी को उसकी शायद सबके सामने लाओ, राइट। एफिशिएंसी मालूम है वो काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी आएगी, उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ओके। एंड ऑल्सो केयर, पर्सनल केयर इज रिक्वायर्ड। कभी आपके स्टाफ के घर में कोई बीमार है, कई बार हम देखते हैं, हम भी ऑब्जर्व करते हैं, हम भी जॉब करते हैं, हम भी शायद ऐसे किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में से निकलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सी योर अपर लेवल इज नॉट कैरिंग, राइट। वो कैरिंग नहीं होते, उनको अपने काम से ही मतलब होता है। दे आर ऑलवेज इन द सेंस ऑफ आपड़ू काम था एंड दैट्स ऑल, राइट। सिंपल, ये नहीं चलता है अभी के मार्केट में, राइट। अभी के लिए सबका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी क्या ऐसा 100 का स्टाफ हो, 100 में से 50 लोग बीमार, तो वो ऐसा पॉसिबल है कि सबको कॉल करें, लेकिन एक कॉमन मैसेज पास ऑन हो सकता है। वी आर फेसिंग द, और मे बी इन पास्ट यू ऑल्सो फेस दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। आपके घर में भी प्रॉब्लम्स हुए, कई घर में प्रॉब्लम है पिछले 2 साल में, लेकिन जैसे पर्सनली बताना चाहे तो कई लोगों का केयर नहीं हुआ, उनके कई प्रॉब्लम्स थे, उसका सॉल्यूशन भी नहीं हुआ, तो सब होता है। तो केयर करना चाहिए, लेकिन ये काम है स्टाफिंग का, ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना रखते हैं, राइट। इसके बाद जो इसके रिलेटेड 2 पॉइंट है प्रोसेस के, राइट, वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी डिटेल में दी थी, दैट्स व्हाई आई चूज द पर्टिकुलर पैराग्राफ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ओके। फॉर द 18 to 44 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो जिसका बाकी है वो करवा ले। आई एम टॉकिंग अबाउट द वैक्सीनेशन, ओके। थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम, स्टे सेफ, केयरफुल।